میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے عہد عتیق میں سے دوسرا سلاطین اس کا 6 باب، دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا، کلام کروں گا، وہ ہے اسپرچول ویژن اور اسپرچول بلائنڈنس، روحانی بصیرت اور روحانی اندھا پن۔ اور آج کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خدا کے بڑے بڑے سرماؤں نے بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی مشکلات کو فتح کیا اور اس وعدے کو حاصل کیا جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، جسٹ بیکاز کہ انہوں نے اپنے روح کی آنکھوں کو جو ہے وہ کھولے رکھا اور وہ دیکھا جو دنیا نہ دیکھ سکی، اور خدا نے ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اندیکھی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، زیادہ بڑی ہیں اور زیادہ پاورفل ہیں۔ ہم اس کلام میں آج یہ دیکھیں گے کہ کس طرح جو موسیٰ تھا وہ اندیکھی چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھتا چلا گیا جو کہ دوسرے دیکھ نہیں سکے تھے۔ آج کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح ایک اندھے کو آنکھیں دیتا ہے، اور نہ صرف جسمانی آنکھیں دیتا ہے بلکہ اس کے روحانی ویژن کو جو ہے وہ اوپن کر دیتا ہے، اور وہ اندیکھی چیزیں جو ہے وہ دیکھتا ہے، نہ صرف خود دیکھتا ہے بلکہ دوسروں کی بھی آنکھیں کھولتا ہے۔ ایک اندھا جو ہے دوسرے اندھوں کی آنکھیں جو ہے وہ کھولتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح جو چرچ ہے وہ اسپرچول بلائنڈنس کا شکار ہے اور کس طرح خدا کی آواز جو ہے وہ نہیں سنتا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈسائپلز جو اندھے پن کا شکار ہو گئے تھے اور خداوند یسوع نے ان کی آنکھیں کھولی۔ ہم دیکھیں گے کہ جو پولس تھا، جب وہ ساؤل تھا تو اس کی آنکھیں بھی بند تھیں، لیکن خدا نے اس کی آنکھیں کھولی۔ آج کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے آپ سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آپ کی روحانی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں اور آپ وہ دیکھیں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو صرف اور صرف ایماندار ہی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر روحانی بصیرت یا روحانی ویژن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں دیکھنا کہ جو عام انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، یا جو لوگ ایمان میں نہیں ہے، اسپرٹ میں نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہم دوسرے کرنتھیوں اس کا 4 باب اور 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں خداوند کا کلام یوں بیان کرتا ہے، جس حال میں کہ ہم اندیکھی چیزوں پر نہیں بلکہ دیکھی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں جو ہے وہ چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ آمین۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اور ہوتی ہیں؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹیمپریری نہیں ہے، جو کہ ایور لاسٹنگ ہے؟
वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देखी हुई चीजों से ज्यादा बड़ी हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा मजबूत हैं। आइए हम इन चंद चीजों को हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक जिस चीज का हम हर सरमन में जिक्र करते हैं, जो कि चीज नजर नहीं आती, लेकिन जब आपकी जिंदगियों में होती है तो आपकी जिंदगियों में हलचल आ जाती है, आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होते हैं, आपकी जिंदगियों में मौजे होते हैं। आप पहाड़ को भी कहते हैं इस जगह से टल जा या सिरक जा, तो वो अपनी जगह जो है वो छोड़ देता है। वो क्या चीज है? आपका ईमान। आपका ईमान जो है अगर आपके अंदर है तो ये अनदेखी चीज है। नॉन बिलीवर्स जो है इस ईमान को नहीं देख सकते, लेकिन खुदा जो है आपके ईमान पे नजर करता है, वो आपके ईमान को देखता है और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। वो आपकी जिंदगी में तहरीक लेकर आता है, आप वो कर जाते हैं जो नॉन बिलीवर्स नहीं कर पाते। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीले से होता है, और आपका ईमान जो है नॉन बिलीवर नहीं देख सकते। सिर्फ और सिर्फ खुदा जो है वो आपके ईमान के ऊपर नजर करता है। दूसरी चीज, उम्मीद। क्या कभी किसी ने उम्मीद देखी है? होप किसी ने देखी है? लेकिन हम जब मसीह में जुड़े होते हैं, जब हम मसीह में पेवस्ता होते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक उम्मीद मिल जाती है। और वो उम्मीद किस चीज की है? कि हम जब ईमान की सूरत में मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, तो हम एक बहुत बड़ी दुनिया का, एक बेहतर दुनिया का, एक आला दुनिया का हम हिस्सा बन जाएंगे, जो कि आसमान की बादशाही है, जो कि किंगडम ऑफ गॉड है। अब हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो मसीह ने दिलाई है, वो क्या दिलाई है? उम्मीद। और मैं एक दफा एक स्टडी पढ़ रहा था, रिसर्च पढ़ रहा था। दूसरी जंग अजीम में जब कुछ कैदियों को कह दिया गया कि आप इधर से नहीं निकल सकते, आप यहां से नहीं निकल सकते, कोई भी सूरत हाल हो आप यहां से नहीं निकल सकते। ऐसे जो मरीज थे उनकी जो इम्यूनिटी है वो गिर जाती है, उनकी जो बीमारियां हैं उनके ऊपर गलबा पाना शुरू करती हैं। लेकिन रिसर्चर ने दूसरी जो ग्रुप था, जिन लोगों में उम्मीद थी, जो ये कहते थे कि नहीं, एक वक्त आएगा हम इन नाजी फौजों के तसल्लुत से निकलेंगे। और वो जो लोग थे उन्होंने ज्यादा उम्र पाई और उन्होंने वाकई आजादी को देखा। लेकिन जिन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अब कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ मौत है, अब तो सिर्फ अंधेरा है, वो वाकई रिहा ना हो सके और पहले ही बीमारियों ने उन्हें आ जकड़ा और वो लोग मर गए। उम्मीद जो है वो आपके ईमान को ताजा कर देती है, आपकी बॉडी केमिस्ट्री को, आपकी फिजियोलॉजी को तब्दील करती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, आप इब्लीस के ऊपर फाते आते हैं। क्यों? कि हमारे पास जो है वो उम्मीद है। हमारे पास ऐसी उम्मीद है जो कि गैर कौमों के पास नहीं है, जो कि दुनियावी लोगों के पास नहीं है, वो सिर्फ रूहानी लोगों के पास है। लेकिन ये उम्मीद जो है वो दुनिया के अंधे लोग वो नहीं देख सकते। जब आपकी रूहानी आंखें खुली होंगी, जब आपकी स्पिरिट की आईज जो है वो खुली होंगी, ओनली देन यू कैन सी द इनविजिबल। अगली जो चीज है मोहब्बत। मोहब्बत जो है वो एक इनविजिबल चीज है, लेकिन हम जो ईमानदार हैं वो मोहब्बत को महसूस करते हैं, हम उस खुदा की मोहब्बत को देखते हैं, हम रूहानी आंखों से खुदा की मोहब्बत को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो सलीब का निशान है। और हम उस इनविजिबल मोहब्बत को कैसे देखते हैं? कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हमारे पास सलीब का निशान है, हमारे पास बर्रे का लहू है जो दुनिया नहीं देख सकती, वो हम देख सकते हैं। खुदा की मोहब्बत जो दुनिया नहीं देख सकती वो हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो ईमानदार ना सिर्फ देख सकता है बल्कि वो महसूस भी कर सकता है, जबकि दुनिया जो है वो इस चीज को नहीं कर सकती। वो क्या चीज है? वो खुदा की हजूरी और ममूरी है। खुदावंद का वादा है कि अगर हम उसमें पेवस्ता रहते हैं, हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, तो खुदा जो है हमारे साथ ड्वेल करता है,
हमारे साथ रहता है, हम उसकी हजूरी में और उसकी ममूरी में रहते हैं, जो कि कोई लोग, दूसरे लोग जिनकी रूहानी आंखें बंद हैं, वो खुदा की हजूरी को नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोग जो हैं वो खुदा की हजूरी को और उसकी ममूरी को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको फील भी कर सकते हैं। खुदा के वादे जो सारे के सारे हां के साथ है, लेकिन जो लोग स्पिरिट में नहीं हैं वो उन वादों को देख नहीं सकते, वो सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन खुदा के वादे, जो लोग ईमान में पेवस्ता होते हैं, जो ईमान पे चलते हैं, वो उन वादों को देखते हैं, ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उनको मैनिफेस्ट होते हुए, बल्कि उनको पूरा होते हुए भी देखते हैं। और यही वजह है कि जो ईमान है वो अनदेखी चीजों का ना, यही पौलुस जो है वो आपको बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि जो हम ईमान रखते हैं अनदेखी चीजों पर, यही ईमान है। ये अनदेखी चीजें हैं जो दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आप इन चीजों को देख सकते हैं। मूसा, खुदा ने उसको एक विजन दिया, लेकिन वो विजन जो था, उसको उस विजन को लेकर वो चलता रहा और उसने जो महल था वो छोड़ दिया और वो विल्डरनेस में चला गया और 40 साल तक वो एग्जाइल की जिंदगी जो है वो गुजारता रहा। वो क्यों एक बादशाह की हजूरी से गया? वो क्यों उसने महल जो है वो छोड़ा? इसका जवाब भी जो है वो हमें कलाम ही देता है। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत में हम देखते हैं, ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्से का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। कौन? मूसा। वो ईमान के वसीला से उसकी स्पिरिट की आइज जो थी वो खुल गई और रूहानी तौर पर उसने वादे की सरजमीन जो है स्पिरिट की आइज से, रूहानी आंखों से देख ली कि आज मैं जिस बादशाह के महल में रह रहा हूं, आज मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं, जो वादे की जिंदगी है, जो वादे की सरजमीन है, वो इससे को बहुत ज्यादा बेहतर है। उधर ज्यादा आराम है, उधर ज्यादा सुकून है, उधर ये कौम आज जो मुश्किल में है, परेशानियों में है, वो आराम में जिंदगी गुजारेगी। उसने कैसे देखा? मूसा ने, उसने ईमान की आंखों से देखा। और जब खुदा ने अब्राहम को कहा कि तू अपनी सरजमीन को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने बाप को छोड़, अपने घर को छोड़ और उस जगह पे जा जहां मैं तुझको ले जाता हूं, और वो वादे की सरजमीन के लिए निकल पड़ा। क्यों उसने सारा कुछ छोड़ दिया? क्यों वो अपने बाप के घर के आराम और वो जो पोजीशन और सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो निकल आया? उसके पास क्या था? उसके पास ईमान था और ईमान ही के वसीला से उसकी स्पिरिट की आइज खुल गई और वो उस वादे की जमीन को देख सका। ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदार ही हैं जो कि रूहानी आंखों से अनदेखी चीजें देख सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड कितने ही लोग जो है वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार हैं। आइए हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में 9वें बाब में आपको जब वक्त मिले तो आप घर जाकर इसकी स्टडी कीजिएगा। पूरा चैप्टर वक्त की कमी के बायस हम यहां पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप लाजमी तौर पर पढ़ें और देखें किस तरह खुदा जो है, एक खुदा यीशु मसीह है, वो एक ब्लाइंड को शिफा देते हैं, एक अंधे को शिफा देते हैं, और जब उसको शिफा देते हैं तो उसकी आंखें हैं खुल जाती हैं। लेकिन उसकी जो आंखें खुलती हैं, ये चीज फरीसियों को बहुत ज्यादा तंग करती है। और यहां पे एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाता है कि ये तो सबत वाले दिन काम कर रहा है
इसको ये किसने इख्तियार दिया है कि ये मौजज़े करता फिरता है? ये कौन है जो ये इतने बड़े बड़े काम कर रहा है? और वो उस अंधे को सवाल जवाब जो है वो शुरू कर देते हैं, तहकीकात जो है वो शुरू कर देते हैं कि ये मौजज़ा जो है ये क्यों हुआ, और इस मौजज़े की वजह से हम किसी तरह मसीह को पकड़वाएं और उसको सजा दें। और उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। बाप से जब सवाल किए जाते हैं तो बाप कहता है ये तो बालग है, ये 12 साल से बड़ा है, ये खुद अपने जो है ना जवाबों का सवालों का जवाब जो है वो दे सकता है। ही इज सेंसेबल इनफ, ही इज मैच्योर इनफ। तो वो फिर उसी से सवाल जवाब जो है वो करते हैं, और वो अंधा जिसकी आंखें खुली थी उसको बुलाते हैं। और लिखा है बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा, खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि यह आदमी गुनाहगार है। किसके बारे में कह रहे हैं? मसीह के बारे में कह रहे हैं कि यह आदमी तो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं, और वो जवाब में क्या कहता है? उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं, मैं अंधा था, अब बीना हो चुका हूं। मेरी आंखें बंद थी लेकिन अब मेरी आंखें जो है खुल चुकी। उसने बड़ा सेंसेबल आंसर दिया। आप देखें, जितना सवाल किया जाए उतना ही जवाब दें। बाज लोगों से सवाल पूछे तो वो आपको पूरा लाहौर फिराक है ना, फिर जो है ना वो बात बताते हैं। लेकिन इस अंधे ने टू द पॉइंट जवाब दिया कि मेरी आंखां बंद सन, हुन खुल गई ने, और दसो। फिर वो एक और सवाल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तेरे साथ क्या हुआ? अब थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है, किस तरह तेरी आंखें जो है वो खुली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे कह चुका हूं और तुमने ना सुना। दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? अब उसने नेक्स्ट लेवल का जवाब दिया है। अभी भी उसने वो जवाब नहीं दिया जो वो सुनना चाह रहे थे। उसने उनको वो जवाब दिया है जिससे वो पिंच हुए हैं, इरिटेट हुए हैं, उनके मुंह जो है वो बंद हो गए हैं, उनके अंदर जो है वो आग लग गई। तो फिर जो है वो डिस्कशन आगे बढ़ती है और वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहां का है, क्योंकि उनकी स्पिरिट की आंखें बंद थी। वो एक चलते फिरते शख्स को देखते थे, वो ये देखते थे कि सबत के दिन मौजज़े कर रहा है, ये नहीं देखते कि अंधे की आंखें खुल गई हैं, ये अच्छा काम है, बल्कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी स्पिरिट की आंखें, रूह की आंखें जो हैं वो नहीं खुली हैं। तो फिर क्या होता है? उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, यह तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। और अगली बात जो है वो आपको हैरान कर देगी, दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। ये वो शख्स जो अंधा था, जिसकी बचपन से आंखें बंद थी, वो बॉर्न ब्लाइंड था, और वो जवाब दे रहा उनको कि कोई शख्स मौजज़े नहीं कर सकता इस तरह के जब तक वो खुदा की तरफ से ना हो। लेकिन जिनके पास शरीयत है, जिनके पास किताब है, जिनके पास मूसा के अहकाम हैं, जो सुबह दोपहर शाम जो है वो नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दायकी देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट की आंखें नहीं खुली, उनकी रूहानी आंखें जो हैं बंद हैं। और बाद में यीशु उसको बुलाता है और पूछता है, और फिर यीशु बड़ी खूबसूरत बात करता है 39वीं आयत में। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं।
जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। यह बात बाज का समझ नहीं आती है, बाज का ऊपर से गुजर जाती है, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि एक शख्स जिसका विजन जो है 6x6 है, परफेक्ट आंखें हैं, सही चल फिर सकता है, वो जा रहा है, रास्ते में पत्थर है और सारा कुछ सही होने के बावजूद भी पत्थर से ठोकर खाता है और गिर पड़ता है। इसमें पत्थर का कसूर है या उस बंदे का? उस बंदे का कसूर है ना। दूसरी मिसाल मैं देता हूं, एक शख्स है, उसको जबरदस्त ड्राइविंग आती है कार की चलाने की, उसके पास गाड़ी भी बहुत अच्छी है, रास्ता भी ठीक है, लेकिन वो सीधा जा रहा होता है और खंबे में लग जाता है। सारा कुछ सही होने के बावजूद भी खंबे में गाड़ी जो है वो लगा देता है। इसमें किसका कसूर है? ड्राइवर का कसूर है कि जानते बूझते भी वो क्या कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। तो वो अंधा हुआ जिसके पास शरीयत है, खुदा के अहकाम है, सारा कुछ है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? गुनाह। इसके बरक्स आप देखें, अगर कोई शख्स देख नहीं सकता, अंधा है और वो सड़क पे जा रहा है और उसको ठोकर लग जाती है, वो गिर जाता है, तो क्या उसका कसूर है? नहीं, उसका कसूर नहीं है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी ब्लाइंड, वो ऑलरेडी वो देख नहीं सकता, वो गुनाहगार नहीं है। लेकिन जिसने देखते हुए भी जो है वो शरीयत पे अमल ना किया, खुदा के अहकामात को नहीं माना, वो स्पिरिचुअली क्या है? ब्लाइंड है। जो ईमान नहीं रखते, सारा कुछ पता होने के बावजूद भी फिर भी ईमान नहीं रखते, वो क्या है? वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। और यही वजह है मैं कहता हूं इस अंधे का जो मौजज़ा है वो ये नहीं है कि इसकी आंखें जो हैं वो खुल गई हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि इस अंधे की रूहानी आंखें जो है वो खुदा ने खोल दी। वो अंधा जो है जिसको आंखें मिली हैं वो इवेंजलिस्ट बन गया है, वो खुदा का कलाम जो है फैला रहा है, उसको सच्चाई का पता चल गया है, उसको राह का पता चल गया है, हक का पता चल गया है, जिंदगी का पता चल गया है, और वो बता रहा है कि ये राह, हक और जिंदगी है जिसने मुझे आंखें दी हैं, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। यही चीज हम देखते हैं साउल की जिंदगी में कि जब खुदा का कलाम फैल रहा था तो पौलुस किस चीज में मगन था? वो हजार अजानियों में, वो शागिर्दों को सताने में, उनको मारने में मगन था, धुन था। उसको कोई और चीज की होश नहीं थी, उसका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था, किसी तरह इस फिरके को जो कि एक मसीहा को मानते हैं, जो किसी मुर्दे के जिंदा होने को मानते हैं, किसी तरह मैं इस फिरके को खत्म कर दूं। और ये जानते हुए वो उसने एक परवाना लिया, एक लेटर लिया और वो चल पड़ता है राह दमिश्क के ऊपर। लेकिन फिर क्या होता है? वहां पे खुदावंद यीशु मसीह उसको मिलते हैं और कहते हैं, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने ऐसा नूर देखा कि उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन जब उसको की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों पर क्या उतरता है? छिलका उतरता है। ये छिलका आज बड़े लोगों की आंखों के ऊपर है, ये छिलका बहुत से लोगों की आंखों पर है। क्या वो रास्तबाज नहीं था? मेरा आपसे सवाल है पौलुस, क्या वो शरीयत को मानने वाला नहीं था? क्या वो 3 टाइम दुआ नहीं करता था? क्या वो हैकल नहीं जाता था? हमारे से ज्यादा पाकबाज था, वो रास्तबाज था, उसके कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। यही गवाही वो अग्रिप्पा के सामने भी देता है, हर बादशाह के सामने, यहूदियों के सामने भी देता है कि मेरे पे कोई उंगली उठाने वाला है मेरे कैरेक्टर के ऊपर तो बताओ। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, उसके पास रूहानी आंखें नहीं थी, उसकी रूहानी आंखें नहीं खुली थी। और यही वजह है कि खुदा जो है उसकी आंखों के ऊपर छिलके चढ़ा देता है, और जब वो छिलके उतरते हैं तो वो साउल से पौलुस बन जाता है, उसकी रूहानी आंखें जो है खुल जाती हैं। जिस दिन आपकी रूहानी आंखें खुलती हैं, आपकी आंखों पे से वो छिलका उतरता है जिसमें गुस्सा है, हसद है, बदी है, जब वो उतरता है
तो आपकी कन्वर्जन हो जाती है, आपकी रूहानी तब्दीली जो है हो जाती है और आप यकसर तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग खुदा के कलाम को एंजॉय कर रहे हैं? खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगला पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूं, आप और ज्यादा जोश में आ जाएंगे, क्योंकि चर्च जो है वो भी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकता है। जो चर्च है, आज कितने ही कलीसियाएं ऐसी हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार है, वो मसीह को भी जानते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, वो चर्च भी आते हैं, वो हदीया नजराने भी देते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार है। और यही चीज खुदावंद यीशु मसीह खुद जब खत लिखते हैं लुदीकिया की कलीसिया को, तो उनको क्या कहते हैं? मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब, और उनको क्या कहते हैं? इस पे मैंने सरमन भी दिया था कुछ अर्सा पहले। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना तू गर्म, काश के तू सर्द या गर्म हो, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। ये बिलीवर्स थे, इन्होंने मसीह को कबूल किया था, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनाया था और चले थे उस रास्ते पर, लेकिन रास्ते में ये हट गए, इनका ईमान जो है वो ठंडा पड़ गया। ये लोग सरगर्म नहीं रहे, इनको गरूर था अपने हदिये नजरानों पर, इनको गरूर था कि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, सारा कुछ है, लेकिन यीशु जो है इनकी जिंदगियों में आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहा था। और फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और यह नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। खुदा यीशु मसीह उसको स्पिरिचुअली ब्लाइंड, तू अंधा है, ये कहते हैं कि तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी चीजें करता है, लेकिन तू क्या है? अंधा है। आज भी कितने चर्चेस जो है जो खुदावंद से हट जाते हैं, नई नई तालीमात को अपना लेते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। मसीह आहिस्ता आहिस्ता उस कांग्रीमेशन में से निकल जाता है और नई रवायात, नई बिदतें, नई टीचिंग्स जो है वो जन्म ले लेती हैं। आज सबसे ज्यादा अपने आप को इस चीज से प्रोटेक्ट करना है। कीप योर स्पिरिचुअल आईज ओपन, और देखिए खुदावंद जो है आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। शागिर्द जब खुदावंद को मसलूब किया गया, तो जब अमाउस की राह पे जा रहे थे, तो उनको एक शख्स मिलता है और वो शख्स उनसे पूछता है कि की गल है, कि बड़े परेशान नजर आ रहे हो? तो कहते तुम्हें नहीं पता चला कि क्या हुआ है? एक शख्स जो मसीह था, जो कि बड़े बड़े काम करता था, मौजज़ात करता था, नबी था, उसके साथ उन्होंने क्या सलूक किया? क्या तू उधर से नहीं आ रहा? तुझे पता नहीं चला? और फिर उसको सारा कुछ बताते हैं, और फिर खुदा यीशु मसीह उनको जो है एजुकेट करता है, तालीम देता है। आप इस चैप्टर को भी गौर से पढ़िएगा। और फिर जब वो आगे जाना चाहता है तो शागिर्द कहते हैं नहीं, रात ज्यादा हो गई है, तू हमारे साथ ही स्टे कर। और जब वो बैठे होते हैं और जब खुदा यीशु मसीह रोटी लेके तोड़ते हैं, तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। उनकी जो ब्लाइंडनेस है, जो कि ब्लाइंडनेस मायूसी की वजह से शायद थी, जो कि परेशानी की वजह से थी, वो ब्लाइंडनेस जाती रहती है और वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। बास का हम भी खुदावंद के साथ होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में से गुजरते हैं कि स्पिरिचुअली जो है वो ब्लाइंड हो जाते हैं। दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और 4 आयत में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इब्लीस आपकी अक्लों को बंद कर देता है।
बाय द वे, आप आंखों से नहीं देखते, आप ब्रेन से देखते हैं, अकल से देखते हैं, जहन से देखते हैं, क्योंकि आंखों से सिर्फ रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपके ब्रेन में जाती है और ब्रेन में आप देखते हैं कि ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है, ये कौन खड़ा है, आप पढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपका जो अकल है, आपका जहन जो है, आपका ब्रेन है, वो देखता है चीजें। आंखें तो बस एक आला है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको इस चीज का पता है। शैतान अटैक करता है आपकी अकलों पर, वो आपकी अकलें जो है वो बंद कर देता है, आपका जहन जो है मौकूफ कर देता है। हैव यू एवर रियलाइज्ड कि जब आप मुश्किल सूरत हाल में से गुजरते हैं, आपका ब्रेन शट डाउन हो जाता है, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ है, जब अचानक गाड़ी कहीं पे लग जाती है, जब अचानक जो है कोई फोन आता है, कोई मुश्किल या कोई ऐसी सूरत हाल, आपका सोचने का प्रोसेस एकदम बंद हो जाता है। ऐसे ही है ना, एकदम आपकी अकल जो है, और शैतान जो है वो आपके जहन को अटैक करता है ताकि आप सोचें समझें ना, आपका सोचने समझने का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाए। इस जहान का खुदा, इस जहान, हमने इसको खुदा बना दिया है, वो खुदा नहीं है, हमने उसको खुदा बना दिया है। जब हम अपनी मुश्किलात को प्रायोरिटीज देते हैं, हम जब मुख्तलिफ रस्मात को प्रायोरिटीज देते हैं जो कि बिब्लिकल नहीं है, हम इस जहान के खुदा को क्या करते हैं, शैतान को हम इस जहान का खुदा बना देते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन स्टेप्स कि आप अगर ये चीजें अपनाएं तो आपकी जिंदगी में रूहानी आंखें जो हैं वो खुल जाएंगी। सबसे पहला जो है वो दुआ करें। कभी आपने नोटिस किया है जब आप दुआ करते हैं आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे होते हैं, आपका जो ज़हन का स्ट्रेस है वो जाता रहता है। कभी आपने नोट किया है? आपका जब दुआ करके आप आंखें खोलते हैं तो कैसा फील करते हैं? परेशान फील करते हैं? मेरे साथ आज तक कभी, जैसे ही दुआ करके आप आंखें खोलते हैं यू फील रिन्यूड, आप एक नया शख्स जो है अपने आप को महसूस करते हैं। क्या पावर है इस चीज में, क्या जो है हकीकत है इस चीज में, वो ये कि ये आपके ब्रेन को रिन्यू कर देती है। दुआ जो है ये आपकी रूहानी आंखों को खोल देती है। और यही वजह है कि एलीशा ने क्या किया, उसने दुआ की कि मेरे खादम की है खुदा आंखें खोल दे। ठीक है, उसने क्या किया, उसने दुआ की। इसी तरह पौलुस ने कलीसियाएं कायम की, लेकिन पौलुस जो है वो क्या करता है, वो दुआ करता है जहां जहां उसने कलीसियाएं कायम की। और ये इफसियों के लिए दुआ करता है। इफसियों पहला बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत हम देखते हैं कि आए कि हमारे खुदावंद यसु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है हमें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुम को मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी उम्मीद है और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आमीन। वो कलीसिया कायम करके पीछे नहीं हट गया, वो कलीसिया के लिए दुआ करता है। और दुआ क्या करता है कि इनकी रूहानी आंखें जो है खुल जाएं, और जब इनकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी तो वो उस जलाल को, उस मेराज को देख सकेंगे। सो प्रेयर में ये ताकत है। दूसरी चीज कलाम में ये भी, फिर मैं कहूंगा जब आप कलाम पढ़ते हैं तो अक्सर हमारी जिंदगी में डेड लॉक्स होते हैं और फिर हम कलाम पढ़ने के बाद कहते हैं यार ये कलाम तो मेरे लिए ही लगता है, मैंने वाकई मेरे सूरत हाल से रिलेटेड है, क्योंकि कलाम में आपको जवाब मिल जाता है। और हम पढ़ते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पे जा रहे हैं और अंधेरा है, बिल्कुल जैसे मैं कलाम दे रहा हूं और बिल्कुल अंधेरा है और इसने टॉर्च पकड़ी हुई है, वो ये मुझे क्या हेल्प आउट कर रही है, रोशनी दे रही है ताकि मैं कलाम को देखकर कलाम को डिलीवर कर सकूं।
अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो क्या मैं पढ़ सकता हूं? क्या आप अंधेरी राह में चल सकते हैं? तो जब हम इस दुनिया में चलते हैं जो कि इब्लीस की बादशाही में है, जो कि इस दुनियावी खुदा की बादशाही में है, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ मायूसी है, हर तरफ लड़ाई झगड़े में है, हर तरफ बुग़्ज़ है, ऐसी जगह पे आपको रोशनी चाहिए कि नहीं? और वो रोशनी क्या है? खुदा का कलाम। तीसरी चीज आपको जो चाहिए, जो आपकी रूहानी विजन को खोल देती है, वो है पाक रूह, होली स्पिरिट। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और 13वीं आयत में देखें, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो वो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। जब होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में आता है, जब पाक रूह आपकी जिंदगी में आता है, तो आपका जो है रूहानी विजन जो है वो खुल जाता है। आपके दिल की आंखें, आपकी ईमान की आंखें खुल जाती हैं और वो आपको दिखाता है कौन सा राह जो सही रास्ता है। जिस सही रास्ते पे तुम्हें जाना होगा तुम्हें वो बताएगा। और हम अमाल में देखते हैं कि पाक रूह किस तरह जो है वो काम करता है, शागिर्दों की रहनुमाई करता है और कैसे जो है वो बड़े बड़े काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पाक रूह जो है वो एक्टिवेट है। अगर वो 2000 साल पहले था तो वो आज और भी ज्यादा एक्टिव है, वो आपके साथ है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आपको पाक रूह जो है वो दिया। और इसके क्या फायदे हैं? हमारी जिंदगियों में क्लैरिटी आ जाती है। आज कितने ही लोग अबहाम का शिकार है और अक्सर हम कहते हैं क्या करें, समझ नहीं आ रही क्या करें। आपको कौन गाइड करेगा? पाक रूह गाइड करेगा। आपकी जिंदगियों में क्लैरिटी आ जाती है क्योंकि आप अनदेखे को देखते हैं, इस वजह से आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है, हिकमत आ जाती है। और तीसरी चीज, उम्मीद, हौसला आपकी जिंदगी में आ जाता है और फिर आप बड़े बड़े काम करते हैं। और हमें लाजमी तौर पर इस चीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमारी रूह की आंखों को खोल दे। बाज़ का हम टेम्पररी ब्लाइंड हो जाते हैं, बाज़ का हम लोग, हमारी आंखें खुली हैं लेकिन हमारे बच्चों की आंखें नहीं खुली होती। दुआ करें कि उनकी आंखें भी खुल जाएं, उनकी स्पिरिट की आईज जो है खुल जाएं। बाज़ का आपके हमसाये की आंख नहीं खुली, बाज़ का आप कलीसिया में फील करते हैं कि कोई शख्स स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार है, आप उसके लिए दुआ करें। क्योंकि जब आपका रूहानी विजन ओपन हो जाता है फिर आप अनदेखी चीजों को देखते हैं जो कि ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा बड़ी हैं, बड़े वादे के साथ हैं। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत है।